Hello students, good morning. We have finished our chapter 1, the fish tail, and we have already done the question answer along with two worksheets. Now we are going to start our next chapter, shapes and angles. So this is your page number 16, and we are going to start the next chapter, shapes and angles. So from the title of this chapter, what do you mean by shapes? There are so many kind of shapes you have learned in class 4, just like rectangle, square, circle, triangle. Okay, all these are different types of shapes that you have learned in previous classes. Along with, we have also learned what are the open shapes and what are closed shapes. ओपन शेप्स किसको बोला जाता है, क्लोज शेप किसको बोला जाता है, ये आप लोग पढ़े हैं, जरा एक बार याद कर ले. So shapes and angles. So we are going to learn so many things about these shapes. Okay, and we are also going to know some new shapes. Okay, हम कुछ नया shapes के बारे में भी इस चैप्टर में जानेंगे. And the next activity, sorry, the next name is angles. So what do you mean by angles? Have you learned the word angles in previous classes, just like class 3 and class 4, etc.? If not, then we are going to learn a very beautiful and interesting thing, angles. Okay, so you can look at the page number 1. Here are some pictures, here are some shapes made for you with the help of matchsticks. You can look out these pictures and compare how many sides are there, how many faces are there, or you can also compare them with other shapes. Okay, and in the very next page, page number 17, you can also find some shapes with having two or more shapes inside it. Okay, हम ऐसा shapes हमको मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग शेप्स हैं, या फिर एक से ज़्यादा शेप्स को मिला के हम कैसा शेप्स बनाएंगे, ये भी हम पेज नंबर 17 में देखेंगे. एंड इन पेज नंबर 18 there are very interesting pictures given to you, just like pentagon, hexagon, octagon, etc. So what do we mean by pentagon? The shape which have 5 sides. A hexagon, the shape which have 6 sides. Octagon, the shape which have 8 sides. Okay, so we are going to learn these shapes in page number 18. And in page number 19, we are going to make such shapes with the help of matchsticks. With the help of matchsticks, we are going to make a octagon, we are going to make a hexagon, etc. Okay, हम क्या करेंगे, मैच स्टिक को लेके उसके साथ डिफरेंट शेप्स बनाएंगे अपने अपने पेपर में. सो इसके बाद हम मैच स्टिक पजल करेंगे, पजल के साथ पजल को कैसे सॉल्व करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, ये सब करेंगे पेज नंबर 19 में. Now in page number 20, we are going to discuss what is the angle tester, where have you seen such type of instrument, and how can we make such type of instrument. Okay, आप ऐसा से जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऐसा जो साधन है आप कहाँ पहले देखे हैं, हम उसको कैसे बनाएं, एंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स ऑफ ए एंगल टेस्टर. जो मेटल एंगल टेस्टर आता है उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसको हम कैसे पेपर से बनाएं, कैसे स्केल से मेजर करें. वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट एंगल टेस्टर. If you have heard the word angle tester before, then it will be easy for you. And after that, we are going to test the angle between so many things, or between the things that we generally find around us, just like scissor, kites, etc. Okay, and in the very next page, in page number 22, you can find a picture. Okay, and we have to find out the different types of shapes and angles in that picture. हमको एक पिक्चर दिखाया जाएगा, हम उस पिक्चर में डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एंगल्स को ढूंढेंगे. जैसे हमें कोई भी पिक्चर दिखा दे, कोई भी पैटर्न दिखा दे, हम उसमें क्या करते हैं ना, जनरली डिफरेंट शेप्स को ढूंढ लेते हैं, है कि नहीं. जैसे कि हमारा कपड़े में कोई पैटर्न बना हुआ है, कपड़े में कोई पिक्चर बना हुआ है, तो हम उसमें ट्रायंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं,
इफ वी ऑब्जर्व कीनली वी कैन फाइंड सो मेनी शेप्स इन एवरी पिक्चर। ओके, अगर हम ठीक से देखेंगे तो हम हर पिक्चर में कुछ ना कुछ शेप्स हमको नजर आएगा। तो इसी में हमें वही करना है। उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड वी आर गोइंग टू डू ए पेपर फोल्ड एक्टिविटी एक्टिविटी। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे डिफरेंट, दौड़ते वक्त हमारा शेप कैसे रहता है, योगा करते वक्त हमारा शेप कैसे रहता है, और जब हम कोई कबड्डी खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं कैसा कैसा एक्शन करते हैं, और हमारा बॉडी का पोस्चर उस टाइम पे कैसे रहता है। जैसे कि योगा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, इस समय हमारा बॉडी का जो शेप है वो कैसा कैसा बनता है कि नहीं। या फिर हम क्या करें ना, जब हमारे दोस्त करेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स आर देयर, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। सो इन व्हिच शेप आवर बॉडी शेप looks like a rectangle, looks like a circle, okay, we can find out. And in angle garden there is a angle garden activity for you. And after we have after the learning of different types of angle, we can find angle in our surrounding. Everywhere we can find angle in our surroundings. So you have to explain, you have to give example, and you have to explain what kind of angle is it in your environment. So here is a simple example, just like garden. You can find different types of angles in your home also, in your school, in your playground. Okay, you can find angles in every places, but we are going to discuss a special garden. Okay, and names. After that we have to write our names in capital, and we have to find out different types of angles in our names. One has been done for you here. And in the next activity we are going to changing shapes activity. How we can change a shape from one to another, how we can make a triangle to a rectangle, or how we can make a circle to a sphere, or how we can make a ऑक्टागन टू हेक्सागन। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंज करने के लिए हमें कैसे कैसे करना पड़ेगा? हमें ज़्यादा मैथ स्टिक ऐड करना पड़ेगा या मैथ स्टिक घटाना पड़ेगा, या फिर कुछ भी काम हमें करना होगा तो हम इसमें चेंजिंग शेप्स में सीखेंगे। जैसे भी हम एक रेक्टेंगल को कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, कैसे एक रेक्टेंगल को कैसे एक हेक्सागन बनाएंगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ शेप्स एंड टावर्स। Okay, we have came across through so many towers and bridges around us. Okay, हम बहुत सारे ब्रिज देखते हैं, रेलवे की ब्रिज हो, पुल, नदी की ब्रिज हो, या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन का टावर हो, इलेक्ट्रिक पोल हो। इस सब में हम क्या करेंगे? एंगल ढूंढेंगे और एंगल को देखेंगे। और इन द नेक्स्ट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू लर्न एंगल्स विथ टाइम। ओके, हम क्या करेंगे? घड़ी के साथ या फिर समय के साथ एंगल्स ढूंढेंगे। 9 बजा है तो हमारा जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है उनके बीच में एंगल क्या है। 10-20 बजा है तो उनके बीच में एंगल क्या है। ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे और एंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वो टाइम भी बताएंगे। ठीक है, ये सब हम करने जाएंगे पेज नंबर 29 में। अच्छा, पेज नंबर 30 में हम क्या करेंगे? एक इंडोर गेम है जो सब पसंद करते हैं, वही कैरम। कैरम में हम कैसे डॉट्स को वो होल में गिराते हैं, तो हमें किस किस एंगल से मारना पड़ता है। अगर हमारा एंगल सही रहता है तभी डॉट्स गिरते हैं, नहीं तो नहीं गिरते हैं। शॉट कैसे सही होता है, इस सब के लिए हमको एंगल की समझ होनी चाहिए, जो कि हम सीखेंगे उस क्लास में। उसके साथ अगर हम फिर क्या करेंगे? फिर एक पेपर फोल्ड एक्टिविटी करके एक घड़ी बनाएंगे। आप सबको बनाना सिखा दूंगा मैं। घड़ी बनाने के बाद उसमें क्या करेंगे? हम लोग अपना पीछे अपना नाम लिखेंगे। आगे 0 से लेकर के 12 तक, सॉरी वो 1 से लेकर 12 तक, या फिर 12 से लेकर के 1 तक का नाम लिखेंगे, और हर एंगल वो वहाँ पे एंगल भी दर्शाएंगे। ओके, उसके बाद हम एक एरोप्लेन बनाएंगे, यानी एक पेपर फोल्ड एक्टिविटी बनाएंगे फिर से। और एरोप्लेन में कहाँ कहाँ पे कौन सा एंगल है, कैसे कैसे हम फोल्ड करते हैं, इसको भी सीखने वाले हैं। लास्ट में हम योगा करते वक्त एंगल्स को सीखेंगे। और सबसे लास्ट जो है हमारा एक जो प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर को ज्योमेट्री बॉक्स से निकालेंगे और प्रोट्रैक्टर के बारे में जानकारियाँ लेंगे।
सो इस चैप्टर में जनरली वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी एक्टिविटीज विथ पेपर and materials around us. Okay, we are going to 3 to 4 paper fold activities in this chapter, and doing so we are going to do so many works also. So in today's homework you have to make a chapter tour. Okay, आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक जो जो पिक्चर दिए हुए हैं या फिर जो जो एक्टिविटी आपको समझ आ रहा है, कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पिक्चर्स देखने हैं. यानी पेज नंबर 16 से ये चैप्टर ख़त्म होने तक आप क्या करेंगे, सारे पेजेस में जो जो पिक्चर्स हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व करने के साथ आप उसको पुराने क्लास में जो पढ़े हैं उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, आगे की क्लास में सारा डिटेल्स पढ़ेंगे. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.